KJ Chopal. We have a very special guest with us today. Let's welcome Mr. Dharmesh Gupta, the Managing Director of Bharat Surtees AgriScience Limited, with a great round of applause. Bharat Surtees AgriScience Limited is at the top of both in providing high quality crop protection products or services to the farmers. Thanks to Mr. Gupta for amazing work he has done. Mr. Gupta has over 21 years of experience in the crop protection product industry, and because of his strong leadership style, creative thinking, ability to successfully mediate and interact with individuals and groups has led to significant growth of the organization. He has a solid understanding of all aspects of financial management and information technology. I request Buddhi ma'am to please come and welcome sir with a token of appreciation, and I request Dharmesh sir to please come to the stage. We would now like to play a short video about Krishi Jagran, its initiatives and daily activities. What started with the launch of a single magazine 26 years ago, today is considered one of India's most respected and diversified agri-media companies. Krishi Jagran, for its years of consistent coverage on agriculture and that too in various languages, has managed to gain a place in Limca Book of Records for the largest multilingual agri-rural magazine. Published in almost 12 languages with a combined readership of nearly 15 million. Yes, you have heard that right, and that's just the beginning. Krishi Jagran today is also named to reckon with when it comes to social media platforms. Viewership is hitting crores every month, and with ever-increasing subscribers thanks to our farmers and followers. Working primarily on building farmer trust has helped Krishi Jagran reach the pinnacle where it is today, and it is just growing and going higher and higher. With 12 YouTube channels in its media bucket and 8 lakh plus daily visitors on its portal, Krishi Jagran is taking every bit of info to farmers and trying to make agri-media self-sufficient, so that when we speak, everyone does take a note. For that, Krishi Jagran also has a wide portfolio to help farmers, from Farmer the Brand to Farmer First, from FTP Organic to Tractor News, from everyone's favorite and top of the town KJ Chopal, wherein we bring eminent personalities and talk about the business scenario. Last but not the least, Farmer the Journalist. As the name says, we are making Farmer the Journalist, giving them the lifetime opportunity of sharing their reports from their village via videos and stories using their mobile phones. More than 200 farmers have already been trained as journalists. Mr. MC Dominic is a man behind Krishi Jagran and every initiative that you have heard and seen till now. And Mrs. Shiny Dominic, the company director, is the lady behind this successful map. Through her hard work and dedication, she has completely transformed Krishi Jagran and made it India's top agri-media house. But for them, all this wasn't enough. So they went on to create AJAY, Agriculture Journalist Association of India. Lately, none other than Honorable Minister Purushottam Rupala unveiled its official emblem amidst the top dignitaries joining the launch physically and virtually. Not to miss was the President of International Federation of Agricultural Journalists, Lena Johnson, who to attend the launch and unveil AJAY's official site. Mr. MC Dominic and his team are leaving no stone unturned to help farmers reach their voice to every nook and corner of the nation, including government offices. In one line, Krishi Jagran is out to empower farmers for a greener future ahead. And now let's have a look at Mr. Gupta's journey. भारत सर्टीज एग्रीसाइंस लिमिटेड, जिसने साल 1977 में अपना परिचालन शुरू किया और तब से लगातार भारतीय बाजार में अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए लगातार नवाचारों के माध्यम से
अपनी साख किसानों में बनाए रखने में सफल रहा। और यही कारण है कि आज भारत सर्टिस एग्रीसाइंस लिमिटेड की उपस्थिति संपूर्ण भारत में है। किसानों को उच्च गुणवत्ता वाली फसल सुरक्षा उत्पाद या सेवाएं देनी हो, दोनों में ही भारत सर्टिस एग्रीसाइंस लिमिटेड अव्वल रहता है। और ये सब संभव है मिस्टर धर्मेश गुप्ता द्वारा। धर्मेश गुप्ता भारत सर्टिस एग्रीसाइंस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं। धर्मेश गुप्ता को फसल संरक्षण उत्पादों और उद्योग में 21 से भी अधिक वर्षों का अनुभव है। उन्होंने गुरु चंपेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार से वाणिज्य में स्नातक डिग्री और साथ ही मार्केटिंग में MBA की डिग्री हासिल की है। इन्होंने विपणन, बिक्री और उत्पादन में लीडरशिप के तौर पर भी कार्य किया है। इन्हें वित्तीय प्रबंधन और सूचना प्रौद्योगिकी के सभी पहलुओं की ठोस समझ है। उनकी प्राथमिकताओं में संगठन की निचली रेखा को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लक्ष्य के साथ भविष्य के विकास के लिए नीतियां और रणनीतियां योजनाएं तैयार करना शामिल है। धर्मेश गुप्ता की मजबूत नेतृत्व शैली, व्यवसायिक कौशल, रचनात्मक सोच, व्यक्तियों और समूहों के साथ सफलतापूर्वक मध्यस्थता और बातचीत करने की क्षमता ने संगठन के महत्वपूर्ण विकास को एक नया जन्म दिया है। गौरतलब है कि भारत सर्टिस एग्रीसाइंस लिमिटेड के पास कई प्रकार के उत्पाद हैं, जो 26 गोदामों, 4000 से अधिक वितरकों और बड़ी संख्या में खुदरा विक्रेताओं के नेटवर्क के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराए जाते हैं। भारत सर्टिस एग्रीसाइंस लिमिटेड की एग्रोनॉमिस्ट की टीम किसानों के साथ मिलकर काम करती है और उन्हें फसल सुरक्षा के बारे में पर्याप्त सलाह भी देती है। धर्मेश गुप्ता अक्सर कहते हैं कि हमारा दृष्टिकोण कृषि विज्ञान के साथ एक मुस्कान लाना है। कृषि में विज्ञान के माध्यम से हम अपने सभी हितधारकों को, जैसे किसानों, उपभोक्ताओं और वितरकों के चेहरों पर मुस्कान लाना चाहते हैं। हमारा मिशन स्थायी खेती में समाधान देने के लिए एक अभिनव मंच बने। हम किसानों को सतत खेती करने में सक्षम बनाने के लिए अभिनव समाधान प्रदान करना चाहते हैं और इसीलिए हमने उड़ान परियोजना शुरू की थी, जिसके माध्यम से हम अगले 5 वर्षों में 1000 करोड़ का कारोबार हासिल करना चाहते हैं। गौरतलब है कि धर्मेश गुप्ता की कृषि उद्योग में उनके जबरदस्त योगदान के लिए काफी प्रशंसा भी की जाती है और हम उम्मीद करते हैं कि वे आगे भी कृषि क्षेत्र में यूं ही अपना अहम योगदान देते रहेंगे। तो वहीं आज कृषि जागरण के केजे चौपाल में मौजूद हैं मिस्टर धर्मेश गुप्ता। वेलकम सर, वेलकम टू कृषि जागरण। Now I would like to invite Dominic sir to take the stage. Over to you, sir. We are always privileged to have the eminent personalities from industry to address us. Today we are really privileged because one of the topmost agrochemical industry person who was actually seeing the market how to grow from his own life and experience, and he has shown how an industry can help change the destiny of Indian farming community. And his vision is that let every farmer have a smiling face. For that he is working today hard. And I know there is no need of any introduction about Bharat Service, Bharat Insecticide which it was started with. And every farmer in Indian farming community knows them and their product. And they always appreciate the quality which they have brought into. And that is the basic reason why they are so successful. And today we are extremely happy. We have the man behind this success story to address us, to show us how he could make this organization so successful and so endearing to the farming community. So I request Jali to come and address our team. Please come.
MC Dominic Ji, Saini Ji, Dr. Bhatt, young and enthusiastic team of SC Jagar, and all the friends who have been online. So very good afternoon to all of you. First of all, before starting my point of view on the agriculture, I would like to congratulate Mr. Dominic for having such a wonderful infrastructure, and I was really impressed to see this green office. So a lot of plantation in the entire office, and you have such a very big and talented team. And I was amazed to see that you guys have 12 languages and 23 editions. And you also got this Limca Book of Records certification. So I congratulate for this wonderful work which you are doing for the Indian agriculture and the Indian farmers. And I wish you all the success for all your future endeavors. So as all of you know that yesterday we have celebrated a mega festival of 75 years of Indian independence. So once again I would like to congratulate each one of us on this special occasion. और प्रधानमंत्री जी का जो एक नारा था घर घर तिरंगा और उसके साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो ये सब हमने सेलिब्रेट किया, एंड वी आर रियली फीलिंग प्राउड टू बी एन इंडियन सिटीजन. So I think as I got the information that around 70 to 80% people have joined online, so most of them they are farmers. So probably I would like to keep my speech in Hindi so that everyone can understand. So I may not be a very great speaker, but whatever small experience I have in the industry. So as today we are speaking on this agriculture, and farmer is the most important thing for us. So I would like to start my talk with two lines on the farmer. कभी जिया करो किसान की जिंदगी, कभी जिया करो किसान की जिंदगी, लोग महलों में रहकर भी खुद को परेशान कहते हैं. So that's the life of farmer. I think everyone should experience that. What is the life of farmer? Agriculture, I think my job has been made very easy by Kasi Jagan team. मैं तो बहुत कुछ लिख के लेके आया था. Can I get my paper? So I think lot has been said about the company. So I just would like to add little more on the company. So इस कंपनी की जो स्थापना है वो 1977 में श्री एस.एन. गुप्ता जी ने की थी, और मात्र 2 उत्पादों के साथ इस कंपनी की स्थापना की गई थी. और आज जैसा कि आपने देखा, कंपनी का पूरे भारतवर्ष में नेटवर्क फैला हुआ है. आपने विभिन्न माध्यम से ये देखा होगा कि किस तरह से कंपनी भारतीय किसानों के लिए काम कर रही है. अभी सन 2020 में 2 जापानीज कंपनी, मित्सुई एंड कंपनी और निप्पॉन सोडा, इन 2 कंपनियों ने इस कंपनी के साथ अलायंस किया, और श्री एस.एन. गुप्ता जी की जो गुडविल थी, उनके जो एथिक्स और प्रिंसिपल थे, जिनके पिलर्स के ऊपर इस ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड किया गया था, तो उसको ध्यान में रखते हुए इन दोनों कंपनियों ने इसमें इक्विटी पार्टिसिपेशन किया और कंट्रोलिंग स्टेक इस कंपनी में उन्होंने एक्वायर किया. इस 2 जो जापानीज कंपनी के साथ अलायंस करने का जो उद्देश्य था वो यही था कि हमारा जो पोर्टफोलियो था वो मोस्टली जैविक था, और क्योंकि किसान की फसल के अंदर नई नई तरह के कीट और बीमारियां आती रहती हैं, उसके लिए हम चाहते थे, क्योंकि जापान R&D के लिए जाना जाता है, तो हम चाहते थे कि इन जापानीज कंपनियों के माध्यम से नई टेक्नोलॉजी भारतीय किसानों तक पहुंचाई जाए. उस उद्देश्य के साथ सितंबर 2020 में ये टाई अप किया गया, और उसके बाद इस कंपनी का नाम बदलकर भारत इंसेक्टिसाइड लिमिटेड से भारत सर्टिस एग्रीसाइंस लिमिटेड किया गया. तो ये नया नामकरण हुआ, और जैसा कि आपने स्मॉल वीडियो में देखा कि कंपनी नए विजन और नए मिशन के साथ मैदान में उतरी है. महत्वपूर्ण ये है कि
जो आज का युवा है तो वो खेती से बेरुख हो रहा है। खास करके किसान नहीं चाहता कि उसके बच्चे खेती में आए, क्योंकि उसको ये लगता है कि खेती आज फायदे का बिजनेस नहीं है। फार्मिंग इज नॉट सस्टेनेबल। तो ये परसेप्शन जो बन रहा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये जो मिशन स्टेटमेंट है वो ये रखा है कि बी एन इनोवेटिव प्लेटफॉर्म टू डिलीवर सॉल्यूशन फॉर सस्टेनेबल फार्मिंग। हम चाहते हैं कि युवा खेती से बेरुख ना हो, हम किसान के लिए नई टेक्नोलॉजी लेके आए और खेती उसके लिए फायदे का सौदा बने। थोड़ा सा मैं मित्सुई के बारे में जरूर बताना चाहूँगा। मित्सुई जो है एक ग्लोबल ट्रेडिंग कॉन्ग्लोमरेट है, जिसकी जो प्रेजेंस है वो विश्व के लगभग 65 कंट्रीज में इनका प्रेजेंस है, और इनका जो रिवेन्यू है वो लगभग $96 बिलियन रिवेन्यू है और $7.5 बिलियन का प्रॉफिट है। तो ये बहुत बड़ी कंपनी है, और ये जो मैरिज हुई है मित्सुई और भारत के बीच में, ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छा इंडियन एग्रीकल्चर के लिए साबित होने वाला है। ये मैंने आपको संक्षेप में जो आपने बताया उसके अलावा मैंने ऐड किया भारत सर्विस के बारे में। तब जो मैं जिस विषय पे आज मुख्यतः बात करना चाह रहा हूँ वो है हमारी इंडियन प्रोडक्टिविटी, जो हमारी उत्पादकता है फसलों की, उसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करना चाहेंगे। हमारा जो फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है वो बहुत बढ़ रहा है। 1950 में लगभग 50 मिलियन टन का हमारा फूड ग्रेन का प्रोडक्शन था, जो पिछले वर्ष बढ़कर लगभग 313 मिलियन टन पर पहुंचा, यानी कि 6 गुना से ज़्यादा का हमारा फूड ग्रेन का उत्पादन पिछले 7 दशकों में आज़ादी के बाद बढ़ा है। कोई इसमें संशय नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि हमारे देश की जो जनसंख्या है वो भी आज़ादी के बाद लगभग 4 गुना बढ़ी है। इस हिसाब से हम अपने उत्पादन को उस रेशो में बढ़ाने में सक्षम रहे हैं, और भारत देश एक आत्मनिर्भर देश बना है। रादर हम जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसका जो एक्सपोर्ट है हमारा, वो भी बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का जो एक्सपोर्ट है वो लास्ट ईयर मेरे ख्याल से $50 बिलियन को क्रॉस हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा इंपोर्ट है वो भी बढ़ रहा है। तो अगर हम नेट डेफिसिट देखें तो वो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा जितनी तेज़ी से बढ़ना चाहिए। हमारा जो फूड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का जो इंपोर्ट है वो भी शायद लगभग $30 बिलियन के आसपास है। तो जो नेट जो रेवेन्यू हम जनरेट कर रहे हैं फॉरेन फॉरेक्स का, वो लोग $20 बिलियन का कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि एग्रीकल्चर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे देश के अंदर, और बहुत ही अपार संभावनाएं हैं एग्रीकल्चर के अंदर। हम हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं कि हमें $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, हमें किसान की आय को दुगना करना है। तो कहते हैं कि एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल अनलेस इट इज स्टार्टेड, एंड इट सीम्स इम्पॉसिबल एज वेल। लेकिन कम से कम किसी ने दिशा तो दिखाई कि हमें ऐसा करना, और मुझे ऐसा लगता है कि ये संभव है। और उसको संभव करने के लिए जो मुझे लगता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम उत्पादकता पे करें। अगर मैं 1 या 2 एग्जाम्पल भी दूँ आप लोगों के सामने कि डिस्पाइट हैविंग वन ऑफ द लार्जेस्ट एरेबल लैंड इन द वर्ल्ड, क्लोज टू 190 मिलियन हेक्टेयर, हैविंग वन ऑफ द लार्जेस्ट इरिगेटेड एरिया इन द वर्ल्ड, around 90 million hectares. Despite having all this, we have used resources, but despite that, our productivity is very, very less. हम अगर चावल की बात करें तो हम सिर्फ एरिया के मामले में लार्जेस्ट है, राइस के एक्सपोर्ट के मामले में लार्जेस्ट है, प्रोडक्शन की हम बात करें तो भी शायद हम नंबर 2 पे हैं चाइना के बाद। लेकिन जब उत्पादकता की बात आती है तो हमारा नंबर लगभग 59th या 60th नंबर पे उत्पादकता में हम चावल की उत्पादकता में हैं।
हमारे जो पड़ोसी देश जिनको हम बोलते हैं कि बहुत ही गरीब हैं, उनकी उत्पादकता भी हमसे ज़्यादा है चावल। हमारे यहाँ औसत 27 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन चावल का होता है, जबकि जो विश्व का जो औसत है वो लगभग 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। चाइना में लगभग 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। चलो चाइना की बात भी छोड़ दीजिए, पड़ोसी देशों की भी बात छोड़ दीजिए, हम अपने ही देश की बात करते हैं। हम अपने भी देश की बात करें तो यहाँ भी बहुत विविधता है उत्पादन के अंदर। चावल के अंदर जहाँ पंजाब और हरियाणा का किसान लगभग 40 क्विंटल के आसपास का औसत उत्पादन लेता है, वहीं ईस्टर्न इंडिया में औसतन 15 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन होता है। तो ये सब विचार करने लायक बातें हैं। हम सोयाबीन की बात करें, हम एरिया में शायद वर्ल्ड में 4th नंबर पे हैं, प्रोडक्शन में 5th नंबर पे हैं, लेकिन यहाँ भी अगर हम उत्पादकता की बात करें तो लगभग 25 से 26वें नंबर पे हम आते हैं। हमारा औसत उत्पादन लगभग 7 क्विंटल के आसपास आता है, जबकि वर्ल्ड में 3 गुना से भी ज़्यादा है हमसे। तो ये मैंने 1-2 एग्जाम्पल दिए हैं, ऐसा बहुत सारी क्रॉप्स के अंदर है जहाँ हम एरिया और प्रोडक्शन में तो नंबर 1 या नंबर 2 पे हैं, लेकिन हमारी उत्पादकता उतनी अच्छी नहीं है। तो अब उत्पादकता को बढ़ाना है तो उसके लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है किसान की एजुकेशन। हमारे ज़्यादातर जो किसान हैं उनके पास शायद उतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है, शायद उन तक जो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो पूरे विश्व में जो अपनाई जाती हैं, क्योंकि हमें ये देखना है कि किस तरह से दूसरे किसान अच्छी फसल ले सकते हैं, ले पा रहे हैं, और हमारे किसान नहीं ले पा रहे हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि किसान को उसके ऊपर एजुकेशन दी जाए। अब अगर भारत सेक्टर्स की बात करूं तो पिछले कई सालों से हमारी कंपनी इस दिशा में कई सारे कार्य करती है। पिछले 2 साल की मगर बात करूं, खास करके इस कोरोना के काल की, जब कोरोना के टाइम पे सबको लगता था कि किसान तक कैसे पहुंचे, क्योंकि लॉकडाउन था, सब घरों में थे और हम अपने टीम तक भी नहीं पहुंच पा रहे थे, तो ये लगता था कि किसान तक कैसे पहुंचे। तो उस समय बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी का आविष्कार, कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि इंडिया जैसे देश में हम किसानों के साथ में डिजिटल माध्यम से जुड़ पाएंगे और उस तरह से उनके साथ में संपर्क बना के उनको हम कुछ एजुकेशन दे पाएंगे। तो पिछले 2 साल में हमारी टीम ने लगभग 20,000 ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम किसानों के लिए किए हैं, और जिसमें 5 लाख से ज़्यादा किसानों को अपनी फसल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए शिक्षा को जोड़ दिया। और जितनी भी हमारी ये ट्रेनिंग होती है, हर ट्रेनिंग में हमारी पहली 4 से 5 जो स्लाइड होती है वो इसी बारे में होती है। हम किसान को ये दिखाते हैं, बताते हैं कि किस तरह से विश्व के दूसरे देशों के किसान इतना अच्छा उत्पादन ले रहे हैं, या अगर हम ईस्टर्न इंडिया में होते हैं तो उनको हम ये बताते हैं, वहाँ हम चाइना और यूएसए और यूरोप की बात ना करके वहाँ हम पंजाब के बारे में बात करते हैं और उनको ये बताते हैं कि किस तरह से पंजाब का किसान अच्छा उत्पादन गेहूँ का और चावल का ले पा रहा है। तो ये बहुत अच्छे से इस पर जोर दिया जाता है और उनको बताया जाता है कि आप किस तरह से गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करके और अपनी फसल में कीटों और बीमारियों का सही तरीके से नियंत्रण करके अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किस तरह से आप अपनी फसल की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा इसी साल हमने एक और नया इनिशिएटिव लिया है, जिसमें हमने पूरे भारतवर्ष में 33 सोयल टेस्टिंग लेबोरेटरीज की स्थापना की है। और इस सीजन में हम थोड़ा लेट हो गए थे, तो हम बहुत ज़्यादा किसानों की के लिए बड़ा प्रशिक्षण का काम नहीं कर पाए, शिक्षण का काम नहीं कर पाए। अभी आने वाले रबी सीजन में हमारा ये टारगेट है कि लगभग
10,000 किसानों के लिए हम मुफ्त में उनकी सोयल टेस्टिंग करके और उनका सोयल हेल्थ कार्ड उनको हम दें, ताकि वो जो फर्टिलाइजर है उसका वो जुडिशियस यूज कर पाए, जिस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है उसी को वो डाले, ना कि जो प्रैक्टिस चली आ रही है कि मुझे इतना डीएपी डालना है, इतना नाइट्रोजन डालना है, उसके पीछे वो ना जाए। तो जितने भी किसान मुझे सुन रहे हैं, वो हमारे जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या जो हमारे लोकल कस्टमर्स हैं, तो उनसे खरीफ की हार्वेस्टिंग के बाद और रबी की बुआई से पहले उनसे वो कांटेक्ट कर सकते हैं और हम 10,000 किसानों का फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के पर्पज पे उनका सोयल टेस्टिंग हम फ्री ऑफ कॉस्ट करके देंगे। तो ये इनिशिएटिव हमने लिया है, हो सकता है इससे भी किसान को अपनी उत्पादकता बढ़ाने में सहयोग मिले। उसके अलावा हम कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट भी किसान के लिए लेके आए हैं मिनिस्ट्री के पार्टिसिपेशन के बाद, जिसमें हमने कॉपर बेस्ड फंगिसाइड लॉन्च किया है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इन कॉपर इन द वर्ल्ड। इससे किसान अपनी फसल में आने वाली बीमारियों का बेहतर तरीके से नियंत्रण कर पाएगा और उत्पादकता बढ़ाने में उसको सहयोग मिलेगा। उसी तरह से एक हमने क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट आज किसान यूज करता है उसमें काफ़ी सारे जेनेरिक प्रोडक्ट होते हैं और कंटिन्यूस यूज होने की वजह से कई बार उसमें रेजिस्टेंस डेवलप होता है और उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड डेल्फिन के नाम से लॉन्च किया है, जिससे इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग मिलेगा किसान को। और पिछले 6 महीने में हमें बहुत ही बेहतरीन परिणाम इस उत्पाद के किसानों के माध्यम से मिले। तो किसान की एजुकेशन के अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है मेरे हिसाब से, वो है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जैसे जैसे किसान लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेगा तो शायद उससे उसको अपनी उत्पादकता को बढ़ाने में सहयोग मिलेगा। और जिस तरह से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उससे जो नॉलेज जो किसान को मिलनी चाहिए नई टेक्नोलॉजी के लिए, जिसमें आप जैसा मीडिया ग्रुप एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, तो वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। और जैसे पहले किसान को शायद वो नॉलेज नहीं पहुंच पाती थी या हम बहुत कम लोगों के तक पहुंच पाते थे, इस डिजिटल मीडिया के माध्यम से हम एक बहुत बड़े वर्ग तक पहुंच पाते हैं और जो नई टेक्नोलॉजी है वो उसके बारे में हम किसान को ज्ञान दे पाते हैं। इसी श्रृंखला में अभी पिछले 1 साल में भारतीय सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है कि जो ड्रोन है, तो ड्रोन का जो यूज है वो पेस्टिसाइड एप्लीकेशन के लिए अप्रूव किया है। और इसमें हम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को तो दोनों ही बधाई के पात्र है कि इतनी तेज़ी से इन्होंने एज ए टीम मिलकर काम किया। और पहले मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के साथ DGCA ने जो ड्रोन की जो गाइडलाइंस थी उसको बनाया और उसको अप्रूव करवाया। उसके बाद सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड ने जितने भी इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड इंडिया में रजिस्टर्ड हैं, लगभग 500 से ज़्यादा ऐसे उत्पाद हैं, उनका उन्होंने 2 साल के लिए प्रोविजनल अप्रूवल दिया है कि हम ड्रोन से इसको हम यूज़ कर पाएँ। और 2 साल के अंदर इंडस्ट्री के अंदर जो भी कंपनियां हैं उनको इनका टॉक्स का जो डाटा है वो जनरेट करना होगा, सबमिट करना होगा और उसका अप्रूवल सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड से लेना होगा। मेरे ख्याल से इसमें बहुत बड़ा उद्देश्य है वो ये है कि जो मैनुअल स्प्रेइंग है उसको एलिमिनेट करना है। मैं नहीं कह सकता कि कितना जल्दी हम इसको एलिमिनेट कर पाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से भारतीय सरकार और प्राइवेट सेक्टर्स पे काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा इकोसिस्टम ड्रोन के लिए तैयार हो रहा है। ड्रोन मैन्युफैक्चरर को गवर्नमेंट बहुत सहयोग दे रही है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही है और ड्रोन एज ए सर्विस जो भी स्टार्टअप्स आएंगे उनको भी गवर्नमेंट बहुत सहयोग कर रही है। तो बहुत तेज़ी से
ये इकोसिस्टम आगे बढ़ रहा है और इससे मुझे ऐसा लगता है कि जो एप्लीकेशन होगा पेस्टिसाइड का वो काफ़ी एक्यूरेट होगा, समय पे होगा। क्योंकि जब मैनुअल करते हैं तो एक दिन में एक किसान जो है 3 से 4 एकड़ में ही स्प्रे कर पाता है, और अगर सही तरीके से प्लानिंग की जाए तो एक ड्रोन से एक दिन में 25 से 30 एकड़ को हम ट्रीट कर सकते हैं पेस्टिसाइड से। इससे जो नियंत्रण है किसी भी बीमारी का या कीट का वो बहुत अच्छे तरीके से किया जाएगा। तो इस तरह से नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। गवर्नमेंट ने कुछ समय पहले बायोस्टिमुलेंट गाइडलाइंस को भी अप्रूवल दिया। अभी तक आई थिंक ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इंडिया इज द आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अप्रूव सच गाइडलाइंस। तो इससे जो अच्छी क्वालिटी के जो बायोस्टिमुलेंट हैं उनको मार्केट में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, और जो स्पूरियस केमिकल लेस्ड जो बायोपेस्टिसाइड या बायोस्टिमुलेंट बिकते थे उस पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। इससे भी किसान को अपनी उत्पादकता को बढ़ाने में सहयोग मिलेगा। एक और चीज है जो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट काफी कोशिश कर रही है। जब ये बोला गया था कि हमें किसान की आय को दुगना करना है, तो वहाँ हम फार्म इनकम की बात नहीं कर रहे थे, हम फार्मर इनकम की बात कर रहे थे। तो फार्मर इनकम को डबल किया जा सकता है, हो सकता है हम फार्म इनकम को शायद डबल ना कर पाए। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है डाइवर्सिफिकेशन। किसान को एक तो ट्रेडिशनल क्रॉप से हटके वेजिटेबल्स और हॉर्टिकल्चर की तरफ डाइवर्ट होना होगा। पिछले महीने नहीं, जून के महीने में मैं मराठवाड़ा में विजिट कर रहा था और वहाँ हमने किसान से मिले। उसने पिछले वर्ष 2 एकड़ में चिली लगाई थी और वो पहला किसान था अपने गांव में चिली लगाने वाला। उसने बोला सर सोयाबीन से मुझे कुछ बचता नहीं है, तो मैंने पिछले साल मिर्ची लगाई और मुझे अच्छी आमदनी हुई। और उससे इनिशिएटिव लेके उस गांव में इस वर्ष लगभग 40 एकड़ में चिली का ट्रांसप्लांटिंग हुआ है। 30 किसानों ने आगे बढ़ के चिली लगाई। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ किसान इनिशिएटिव ले रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट भिवानी में जहाँ हमारा नेटिव प्लेस है, वहाँ पे एक किसान ने लास्ट ईयर फिशरी प्रोडक्शन स्टार्ट किया और अनफॉर्चुनेटली उसको बहुत लॉस हुआ उसमें। लेकिन उसकी हिम्मत की दाद देनी होगी कि पिछले साल लॉस होने के बावजूद भी इस बार उसने फिर जो है फिश प्रोडक्शन पे काम किया है। तो इस तरह के किसान हमें ढूंढने होंगे जो इस तरह का इनिशिएटिव ले रहे हैं, जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे भी काम कर रहे हैं और अदर देन फार्म इनकम, चाहे वो फिशरी है, चाहे वो पोल्ट्री है, चाहे वो और दूसरे साधन हैं इनकम के, उसके ऊपर भी उसको फोकस करना होगा। तो मुझे लगता है ये सारे जो बिंदु हैं इनको हम लेके चलेंगे तो शायद किसान की इनकम को बढ़ाने में अवश्य हमें मदद मिलेगी। 5 मिनट में बस ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक इस पर मैं बात करना चाहूँगा कि जो हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की हम बात करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से एग्रीकल्चर एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, उसी तरह से एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री भी इस $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। आज जो लगभग $60 बिलियन की ग्लोबल पेस्टिसाइड मार्केट है, उसमें इंडिया का 5th नंबर है और हम 2nd लार्जेस्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड है। लेकिन वी आर ओनली द 5th लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री। हमारे यहाँ जो कंजप्शन है वो मात्र 600 ग्राम प्रति हेक्टेयर है, जबकि ये तो मीडिया का डाटा है, सबको पता है कि ताइवान में 17 किलो, चाइना में 13 किलो, बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर 10 किलो प्रति हेक्टेयर से ज़्यादा का कंजप्शन होता है। मैं ये नहीं कहता कि
हम इसके कंजप्शन को बढ़ाते रहें। मुझे लगता है कि इसके जुडिशियस और सेफ यूज पे हमें फोकस करना चाहिए। लेकिन जो एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री है वो आज की डेट में, अभी पिछले दिनों ही न्यूज पब्लिश हुआ है कि लगभग 23,000 करोड़ रुपए का ट्रेड सरप्लस एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो है वो इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। और जिस तरह से पिछले 3-4 वर्षों में चाइना के अंदर परिस्थितियां डेवलप हुई हैं, खास करके वहाँ के एनवायरनमेंट को लेके, या उनका जो भी वैश्विक स्तर पे खास करके अमेरिका के साथ जिस तरह से ट्रेड बैरियर लगे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड की बहुत सारी कंपनीज, स्पेशली द जापानीज मैन्युफैक्चरर, दे आर लुकिंग एट नाउ चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी, क्योंकि सबको लगता है कि वी शुड हैव वन मोर ऑप्शन। और इसलिए बहुत सारी कंपनियां, क्योंकि इंडिया के अंदर जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, इंडिया के अंदर लेबर की अवेलेबिलिटी अभी तक अच्छी है, तो उसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज और बहुत सारी कंपनीज इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। उसी का नतीजा है कि बहुत सारी कंपनियां एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में इंडिया में इन्वेस्ट भी कर रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम मेक इन इंडिया को, अगर सच में मेक इन इंडिया बनाना चाहते हैं, तो एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री को एक बड़े स्तर पे आगे लाना होगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ध्यान में रखते हुए हमें काम करना होगा और इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया वर्ल्ड पेस्टिसाइड मार्केट का एक बहुत बड़ा शेयर कैप्चर कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कैपेसिटीज हैं, कैपेबिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिसोर्सेज हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी इंडिया के अंदर एसोसिएशन हैं वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस विषय पे काम भी कर रही हैं और गवर्नमेंट से सहयोग भी मिल रहा है, बट इसको हमें थोड़ा सा और अच्छे तरीके से एक्सपेडाइट करने की ज़रूरत है, ताकि हम सच में इंडिया को एग्रोकेमिकल के अंदर एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकें। भारत सेक्टिस मिस्ट्री के पार्टिसिपेशन के बाद इस दिशा में कार्य कर रहा है, क्योंकि बहुत सारी मिस्ट्री की सब्सिडी हैं। हम चाहते हैं कि भारत सेक्टिस इंडिया जो है वो उनके लिए एक सोर्सिंग हब बने इंडिया के अंदर। तो हम अपनी तरफ से जो प्रयत्न कर सकते हैं वो कर रहे हैं और मुझे लगता है कि सबको मिलकर इसके ऊपर काम करना चाहिए। एक अंतिम विषय जिस पर मैं बात करना चाहूँगा वो है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग। ये एक बहुत बड़ा विषय है आज के समय में और हम देख रहे हैं कि हर महीने हर तरह के रिकॉर्ड टूटते हैं। कभी एक्सेस रेनफॉल का रिकॉर्ड टूटता है, कभी ड्रॉट का, कभी हाईएस्ट टेम्परेचर का, सर्दियों की बात आती है तो मिनिमम टेम्परेचर का। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसका भी हमारी उत्पादकता पे असर पड़ रहा है और सबको मिलके इस दिशा में काम करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसमें हम अपने स्तर पे जो कर सकते हैं भारत सेक्टिस की तरफ से कि जो क्रॉप के लिए जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, जो बायोटिक या एबायोटिक स्ट्रेस है, उसके मैनेजमेंट के लिए कुछ उत्पाद हमने लॉन्च किए हैं और कुछ और टेक्नोलॉजी पर जो मित्सुई की ग्रुप कंपनी है उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है, ताकि जब भी बारिश नहीं हो रही है तो कैसे क्रॉप को सस्टेन किया जाए, या बारिश ज़्यादा हो रही है तो कैसे सस्टेन किया जाए, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और इसके अलावा हर वर्ष हम ट्री प्लांटेशन ड्राइव भी हमारी तरफ से चलाते हैं। उसमें जो हमारा फोकस होता है वो नंबर पे ना होके उसकी सर्वाइवल पे होता है, क्योंकि हम सुनते हैं कि वहाँ 10 लाख पेड़ लगवाए, वहाँ 5 लाख पेड़ लगवाए, लेकिन अगर आप 1 साल के बाद जाके देखेंगे तो उसमें से सर्वाइव कितने होंगे, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मुझे यहाँ खुशी हो रही है ये बताते हुए कि पिछले वर्ष हमने 10,000 पेड़ लगवाए थे और जिसमें से लगभग 8,000 पेड़ का सर्वाइवल हुआ है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और मैं सभी से अपील करता हूँ कि जब भी किसी का जो बर्थडे है फैमिली में, चाहे एनिवर्सरी है, कोई भी इस तरह का जब मौका आता है तो आप उस दिन की जो शुरुआत करें वो एक पेड़ लगा के करें।
तो अंत में मैं 4 लाइनें फिर बोलना चाहूँगा, जिससे मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। तो अंत में आप सब मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। We have time. So if anybody has any question, हालांकि मैंने बोलने में ज़्यादा समय लिया है, तो समय कम बचा प्लीज। Sir, as an agri-farming company, how are you promoting sustainable agriculture? गुड क्वेश्चन। तो जैसे मैंने बोला कि जब किसान की उत्पादकता अच्छी नहीं होगी और साल के अंत में उसकी जितनी लागत लगी उससे ज़्यादा उसको अगर मुनाफा नहीं मिलेगा तो वो उसके लिए सस्टेनेबल नहीं होगी। तो इसके लिए हम 2 तरीके से हम काम कर रहे हैं। एक तो हम उसको गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए हम किसान को एजुकेट कर रहे हैं। मैंने बताया कि हमने बहुत सारी एजुकेशन और ट्रेनिंग फार्मर के लिए हम करते हैं, जिसमें हम किसान को ये बताते हैं कि किस तरह से गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करके आप अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। दूसरा, क्योंकि फसल के अंदर बहुत सारी कीट और बीमारियां आती हैं, तो उसका समय पे नियंत्रण करना क्यों महत्वपूर्ण है। अगर नहीं करेंगे तो उसकी फसल को नुकसान होगा, उसका उत्पादन कम होगा। तो ये 2 तरीके हैं जिसके माध्यम से हम चाहते हैं कि किसान की उत्पादकता बढ़े और वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ बढ़े। प्लीज। Good afternoon, sir. Sir, as you said about soil testing, so is there any other such activities that Bharat Service has planned for the farming community? सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी प्लान पे हैं, विच आई एम नॉट कमेंटिंग राइट नाउ हियर, बट हमारा उद्देश्य यही है कि हर वर्ष कोई ना कोई नया इनिशिएटिव हम किसान के लिए लें, जिससे किसान के साथ हम भागीदार बन के उसको हम मतलब प्रबल और सबल बनाएं, ताकि वो एग्रीकल्चर के प्रति कंटिन्यूअसली मोटिवेटेड होकर लगा रहे, क्योंकि वही हमारा अन्नदाता है और वही हमारा सब कुछ है। तो किसान अगर एग्रीकल्चर से बेरुख हो जाएगा तो शायद देश के लिए अच्छा नहीं होगा। How Bharat Service is dedicated towards corporate social responsibility? तो जो CSR का जो इनिशिएटिव है हमारा, तो उसके तहत भी हमारी टीम काफ़ी काम करती है, और उसमें हमने मध्य प्रदेश और हरियाणा में कुछ गांव जो ऐसे हैं जिनको हमने अडॉप्ट किया है, और उन गांव के अंदर हमारी जो टीम है वो कई तरह के काम करती है, जिसमें हम वहाँ के जो ग्राम निवासी हैं उनकी हेल्थ के ऊपर हम काम करते हैं, वहाँ के जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन में उनको हम सपोर्ट करते हैं, और फार्मर के साथ मिलके उनकी हम प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी हम काम करते हैं। और उसमें हमारा जो उद्देश्य है कि हर साल हम कुछ गांव और जोड़ते जाएं, और जो एक्टिविटी अभी हम आज कर रहे हैं उसके अलावा कुछ और एक्टिविटी हर साल हम जोड़ते रहेंगे। जो पिछले 2 साल जैसे कोविड का समय रहा, तो इसी साल जहाँ तक स्कूल खुले हैं, तो इसी साल अप्रैल में ही हमने लगभग 10,000 स्कूल बैग विद बुक्स बच्चों को हमने इन जो गांव हैं वहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और इस बार हम कुछ अच्छे और जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ हम स्कॉलरशिप का भी प्लान कर रहे हैं। तो इस तरह से CSR इनिशिएटिव के तहत हम बहुत सारे काम करते रहते हैं। जो ट्री प्लांटेशन ड्राइव है, दैट इज ऑल्सो अनदर इनिशिएटिव विच इज अंडर आवर CSR इनिशिएटिव। So you have a drip management product called Tiger
sort. Yeah. So how did you come up with such a unique name? You? Unique name. Okay. I think there is nothing uniqueness, so it is a very common name, and in our portfolio we have many other name also related to this. So when our team, marketing team, normally they take the feedback down the line from our teams and partners, and based on that they compile various names, and based on the recommendation they shortlist and then search these names. So this product is very effective against the thrift management on cotton and chili, and this was launched in the beginning of this financial year only. Any other question? No. Okay, thank you. Now I request Dr. P.K. Pant, our COO, for vote of thanks. First of all, thank you, Ranvesh ji, for sharing your views in KJ Chopal. One thing is there, the country like India is not up to the mark if you talk about production and productivity. What is the reason why we are not, number one? Production and productivity के लिए, as he suggested, three things are very important. Number one, testing. Soil test is very important. No farmer is coming forward for doing soil test. I thank Dharmesh ji that he has taken the initiative to educate farmer to do the soil test. Number one. Without knowing the requirement of soil, we are, practicing agriculture. Number one. Number two, no farmer is ready to replace his seed. Whereas in comparison to international level, the farmers, हिंदी में बोल सकता हूँ मैं, जैसे हिंदी लोग सुन रहे हैं, करीब 150 लोग अभी फार्मर्स जुड़े हुए हैं, तो मैं फार्मर्स को बताना चाहता हूँ कि जब आप सीड का रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। हम लोग एज ओल्ड आज से 25 साल पहले जिस सीड का को इनोवेट किया गया था, जिस सीड को नंबर वन सीड कहा गया था इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए, वही सीड हम आज भी यूज कर रहे हैं। वाई, क्यों किसान आज अपने सीड का रिप्लेसमेंट रेट को एटलीस्ट 20% रख पाता है? बहुत बड़ा दुख है कि किसान का जो अवेयरनेस है, एजुकेशन है, उस पर हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। किसान को अगर हम समझाते हैं तो वो आगे आता है। जैसे ही आप किसान को समझाएंगे कि देखिए जो आपका सीड है ये 10 साल पुराना है, ये परंपरागत सीड से आ रहा है, इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होते जा रही है, तो अगर आप इसको रिप्लेस करेंगे, हम ये नहीं कहते किसानों को कि आप तुरंत अपने सारे सीड्स को रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि सीड के ऊपर उनकी रिलायबिलिटी नहीं होती, उन्हें नहीं पता चलता कि कौन सी सीड का प्रोडक्शन अच्छा आएगा। या तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, जब हम किसान को जब हम शिक्षित करते हैं तो उसको ये नहीं बताते हैं कि जो सीड पंजाब में सक्सेस है जरूरी नहीं है कि वो झारखंड में सक्सेस होगा, क्योंकि इंडिया में ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट दोनों क्लाइमेट है। दोनों क्लाइमेट के अंदर में हमें सस्टेन करना पड़ता है। प्रॉब्लम है केवल अवेयरनेस की। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर हम सीड रिप्लेसमेंट रेट कर भी लेंगे, सीड ट्रीटमेंट नहीं करते। रीजन फार्मर के पास अपना सीड होता है, उस सीड को ट्रीट करने का उसको जो नॉलेज है वो नहीं दिया गया है, फार्मर को पता ही नहीं है कि वो सीड का कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसका प्रोडक्टिविटी में बहुत बड़ा असर पड़ता है। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि अगर कोई फार्मर सिर्फ सीड ट्रीटमेंट करे, 30% उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, पर अवेयरनेस की कमी है। सॉइल टेस्ट कराएंगे, सॉइल टेस्ट के हिसाब से रिकमेंडेड डोज देंगे, बट नेचुरल है कि आपकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी आएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम डाउन। ये सब चीजें धर्मेश जी आपने बताई, बहुत अच्छा है। आप लोग की इनिशिएटिव मैंने सुना, सीएसआर में जो आप लोग काम कर रहे हैं, जिसमें आपने सॉइल का आपने कहा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो समझता हूं कि सॉइल के लिए आप लोग या आप जैसी कंपनी अगर फार्मर्स के पास फ्री ऑफ कॉस्ट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस सर्विस भी आप करते हो, एक्चुअली केवीके में जो हो रहा है और जो आप लोग कर रहे हैं, दोनों में बड़ा डिफरेंस है। मैं इस मंच से नहीं कहना चाहूंगा, बिकॉज आई एम द विटनेस ऑफ दैट ऑल। ये सारी चीजों के लिए वंस अगेन कृषि जागरण फैमिली आपका स्वागत करती है, आपको धन्यवाद देती है आज आने का। और मैं कृषि जागरण फैमिली की तरफ से
आपको विश करता हूं कि आप इस तरह के इनिशिएटिव करते रहें। CSR के लिए अगर हमारी आवश्यकता पड़े तो हम आपके साथ खड़े हैं, हमारी पूरी टीम CSR के लिए आपके साथ खड़ी है। थैंक यू वेरी मच ऑन बिहाफ ऑफ